did you not want to give your campus placement? On to the point, how did you prepare for campus placement? ऑलमोस्ट 6 से 7 जने ऑल इंडिया रैंक्स थे। और आप ऑल इंडिया रैंक होल्डर नहीं थे मैं नहीं थी, और फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड भी नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट और क्वालिफाइड नहीं थी। दोनों ग्रुप भी अलग अलग दिए, ठीक है। व्हाट इज दैट वन थिंग विच वी ऑल स्टडी फॉर? अनडाउटेडली CMA is a degree which we want for sure, but what is that ultimate goal for which we are making our career, for which we are working really hard? Yes, we want a stable career. We want a fruitful, a fulfilling, and a growth oriented career. And we want, of course, a good package, a good profile in the CMA campus placement. Guys, it is my pride and privilege. A very, very proud teacher presents to all of you. Yes, the much coveted Power Finance Corporation yet again has chosen only 2 candidates from the Delhi zone. And yes, I am presenting before you one of those candidates who has secured 26 lakhs per annum package. And it is not a small deal at all. It is really, really interesting to know about their journey. What was the questions asked in the interview? What kind of preparation had they done for the campus placement? Because getting a degree is one thing and getting such a humongous package is absolutely a different thing. So with round of applause, I would like to welcome CMA Prabhavati. CMA Prabhavati, many congratulations on attaining this big milestone. PFC, Power Finance Corporation, in CMA campus placement. How does it feel? Thank you so much. I feel so grateful, sir. Thank you so much for giving me this opportunity to share my experience. This is Oh yes, amazing absolutely. experience. We want to know about your journey. So Prabhavati, first of all, I would like to tell to all the members of my audience that Prabhavati was about to miss her campus placement. She had decided कि sir मैं campus placement नहीं दूंगी. I will not give my campus placement. Prabhavati, what was the reason that you approached me one fine day and told me that sir I'm not willing to give my campus placement? Why did you not want to give your campus placement? Sir, the reason was I was decided to don't give the campus placement. Actually, sir, मैंने अपने जितने भी सीनियर से बात करी थी, उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया था कि जिसके मतलब इतने अटेम्प्ट्स लगे होते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, उनके कितने लिए अटेम्प्ट्स जनरली लगे हैं तुम्हारे? कैंपस। सर मेरे 5 अटेम्प्ट्स हैं। Okay, now point to be noted over here that Prabhavati has qualified her CMA final in 5 attempts and yet she could bang what? 26 lakh package with Power Finance Corporation. So all those students who always keep on asking me, sir attempt matter karte hain, sir attempt matter karte hain. Yes, matter zarur karte hain, but if you have the vigor, if you have the power, then even if you've taken multiple attempts, then also you can qualify your examination and also you can bang a good package in CMA campus placement. Okay, Yes, Prabhavati got your reason. Reason number 1 was multiple attempts and मल्टीपल एंड सेकंड वन सर, मतलब मुझे मेरे कुछ सीनियर्स ने, अगर मैं बोलूं, मैंने अगर 10 जनों से बात करी तो मुझे 4 जनों ने ये सजेस्ट किया था कि आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। एक्सपीरियंस अच्छा है, मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है और करंटली मैं आईआईटी कानपुर में वर्किंग हूँ लास्ट 2 इयर्स से। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट की वजह से बेशक रिजेक्ट कर भी दिया तो लेकिन आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। तो एक रीजन मेरा प्लेसमेंट में बैठने का रीजन ये भी था कि माइट भी हो सकता है मुझे एक्सपीरियंस की वजह से ले लिया जाएगा। सेकंड, फिर मुझे डाउट ये था कि प्राइवेट से गवर्नमेंट से प्राइवेट में स्विच करना बेटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, करेक्ट, प्राइवेट में एक आपको एज अ गर्ल एक रिस्क भी है। करेक्ट। तो इसीलिए सर। तो यस, प्रभावती को बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस थे, बहुत सारे क्लाउड्स थे माइंड में, बट अनडाउटेडली सीएमए क्वालिफाई करते ही द फर्स्ट थिंग दैट एवरीवन शुड aim for his campus, and that's what she actually did. So Prabhavati, directly now coming on to the point, how did you prepare for campus placement? What were the steps that you took after your qualification till your campus placement? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपको ट्रेनिंग में बताया जा रहा है, प्लीज डोंट टेक इट अ लाइट वे। नो, दिस इज नॉट द कौन सी वे कि ट्रेनिंग? आप ट्रेनिंग जो आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रोवाइड की जा रही है, Okay, पीपीओटी pre-placement orientation program. All ओरिएंटेशन, right. आपको जो भी 11 दिन में सिखाया जा रहा है, यू थिंक कि ये तो हमें पहले से आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हम यूट्यूब से कर लेंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं कर रहे हैं। तो
आप बेशक उसका क्रक्स, अल्टीमेटली आपको उसका क्रक्स देखना है कि वो करा क्या रहा है। बेशक मतलब मैं वहां पे आई गेस मैंने 2-3 बच्चों को पॉइंट आउट देखा था कि वो उसके नोट्स बनाते थे कि ठीक है हम इस टॉपिक के बारे में घर जाके थोड़ा सा पढ़ लेंगे, या जो भी आपको पीपीटी वहां पे दी जा रही है, जो भी आपको एक्सेल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्लीज आप उसको लाइटली मत लीजिए। आप थोड़े से ही नोट्स बनाइए, बट आप हर डे का एक थोड़ा सा नोट बनाते हुए चलिए कि जो आपको कैंपस के टाइम पे हेल्प करेगा। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड सर, आपका जिसमें शॉर्ट लिस्ट आ रहा है, द मैटर इज कि आपका शॉर्टलिस्टिंग किस किस कंपनीज में आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए कि वो उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, आपको अपने बारे में क्या कहना है। बेसिकली 2-3 चीजें हैं कि आपको एचआर के क्वेश्चंस तैयार करने हैं, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, और टेक्निकल्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए। ओके, परफेक्ट। सो 2 एलिमेंट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। अब आ जाते हैं पीएफसी के इंटरव्यू में। तो पीएफसी के इंटरव्यू में पैनल में कितने लोग थे जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया? सर 3 जने थे, 3 3 जन। लोग थे पैनल में। और किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने आप पे थ्रो करने शुरू करे, किस तरह का प्रेशर बनाना शुरू करा? सर मैं आपको मतलब होल स्टोरी बताती हूँ कैसा था। टोटल 12 जने थे, टोटल मतलब 12 ओ, कैंडिडेट्स थे जो उन्होंने सेलेक्ट किए कैंडिडेट। थे। कैंडिडेट्स थे 12 करेक्ट। कैंडिडेट्स और थे जो उसमें उन्होंने एआईआर सेलेक्ट भी होंगे, बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी किए। होंगे। ऑलमोस्ट 6 से 7 जने ऑल इंडिया रैंक्स थे। और ठीक है, आप ऑल इंडिया रैंक होल्डर नहीं थे? मैं नहीं थी, मैं और नहीं फर्स्ट थी। अटेम्प्ट क्वालिफाइड भी नहीं था? फर्स्ट अटेम्प्ट और क्वालिफाई नहीं थी। दोनों ग्रुप भी अलग अलग दिए, ठीक है? अलग एक अलग ग्रुप दिए थे, बहुत पहले बहुत क्लियर हुआ। गैप था, या दोनों ग्रुप्स में गैप बहुत था, बीच में मतलब बहुत सारी चीजें थी। तो यस, अल्टीमेटली मेरे को पीएफसी का मेल आता भी 12 को है। जनरली बच्चों को 10-11 तक मेल आ गया था पीएफसी का। हाँ। मेरे को शाम को 12 बजे 12th को मेल आता है पीएफसी के लिए। तो मेरे एक सीनियर है, उनको भी आया था। तो मैंने उनसे कंफर्म किया, उन्हें बताया कि मेरे को भी पीएफसी के लिए आया है मेल, आपको भी आया है। तो उन्होंने बोला कि मेरा रिज्यूमे मांगा गया है वहाँ पे, आपसे मांगा। मतलब मेरा रिज्यूमे तो नहीं मांगा गया है। तो ही सेड कि माइट भी हो सकता है आपका जो प्रीवियस कंपनीज में जो मांगा है, आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसी रिज्यूमे को फॉरवर्ड कर दिया होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है उनके पास भेजने के लिए। इट्स फाइन। अब जब मैं वहां पे पहुंचती हूँ, आई एम द फर्स्ट वन जो इंटरव्यू सेशन पे सबसे पहले पीडब्ल्यूसी के लिए पहुंचा था। ठीक है, तो मेरी कोऑर्डिनेटर्स वगैरह से बात हुई, उन्होंने बताया कि आपका, पहली बात वो मुझे समझ रहे थे कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। वहां पे जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने सोचा कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैंने बोला नहीं, आई एम द कैंडिडेट हु प्रेजेंट, जिनका इंटरव्यू है। तो 12 जने वहां पे थे, कैंडिडेट्स थे। मेरा नंबर ऑफ लिस्ट में भी 12 नंबर पे था, और मुझे रखा भी 12वें नंबर पे था। ओह। उन्होंने दोबारा से सीक्वेंस बनाया था कि हम किसका किस अकॉर्डिंग लेंगे, किस बच्चे को पहले बुलाएंगे, तो मुझे रखा भी 12वें नंबर पे था। तो उसमें मेरे को और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, मतलब ये सोच के कि क्या पहले से डिसाइडेड तो नहीं है कि इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा, कि सिर्फ फॉर्मेलिटी तो नहीं है कि एंड में रख दिया, क्योंकि मेल भी मुझे सबसे लास्ट में आया। तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे, और जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे थे, मैं उनसे पूछती जा रही थी कि कैसा क्या पूछ रहे हैं, उनका मतलब ध्यान किस चीज पे है, आपके आपके पर्सनालिटी पे ज्यादा है, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछ रहे हैं, टेक्निकल पूछ रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्रक्स ये निकला कि वो हर एक बच्चे से अलग पूछ रहे थे। मतलब बेसिकली कुछ बेसिक सवाल थे पीएससी से रिलेटेड जो कॉमन थे, बाकी डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका ऑल इंडिया रैंक है या क्या है, सबके सवाल अलग थे। आप जज नहीं कर सकते कि अंदर मेरे से जाके वही पूछेंगे। बट मेरे से पहले 11 जने गए थे, मैंने उनके क्वेश्चंस को 3-4 को कंबाइन कर लिया था कि हाँ ये पूछ सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। बस मैंने वही वो वाले तैयारी हमें कर, जानने हैं क्वेश्चन। हाँ जी। तो क्वेश्चंस बताऊं मैं आपको कि क्या थे बेसिक बिल्कुल, क्वेश्चंस। हाँ, एब्सोल्युटली। तो फर्स्ट कि एनबीएफसी और बैंक्स में क्या डिफरेंस है। ओके। एनबीएफसी और बैंक्स में क्या डिफरेंस है। सेकंड, पीएफसी के टेक्निकल्स, पीएफसी काम क्या करती है, बेसिक आपको बैलेंस शीट बस, पीएनएल आपको अकाउंट। आप किसी भी लैंग्वेज में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर मुझे क्या अच्छी लगी, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हो। बच्चे क्या करते हैं, हमारा इंग्लिश ठीक नहीं है, हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। आप आप उनसे आप अपफ्रंट होके बोल सकते हो कि सर आई एम कन्वीनियंट इन द हिंदी लैंग्वेज, इट्स फाइन टू स्पीक। तो वो आपको इजीली बोलेंगे कि आप जिसमें बोलना चाहते हैं आप उसमें बोलिए, इट्स फाइन। तो होता क्या है, फिर 4-5 क्वेश्चंस मैंने तैयार कर लिए, एनबीएफसी एंड इसमें डिफरेंस क्या है, बैंक्स में डिफरेंस क्या है, सेकंड पीएफसी के फाइनेंशियल्स क्या है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मेरे साथ होती है कि फाइनेंशियल्स मैं गूगल पे देख रही हूँ, उनकी साइट से देख रही हूँ, बट उन्होंने जो अपना पीपीटी दिया था मेल के साथ, जो उन्होंने भेजा था, उसी में उनके फाइनेंशियल्स थे, जो मेजर फाइनेंशियल्स, सिर्फ आपको वही देखने थे, आपको सिर्फ वही देखने थे। तो जिसका सेकंड वन जिसका सेलेक्ट हुआ, ऑल इंडिया रैंक
तो उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ से देख रहे हैं फाइनेंशियल्स, तो उन्होंने बोला कि जो पीपीटी आया है आप उसमें से देख लीजिए। मैंने उसको देखा, वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट सर, शायद 15 मिनट पहले वो फाइनेंशियल्स मैंने अप्रोक्सीमेट टर्म्स में याद किए, अप्रोक्सीमेट टर्म्स मैंने उन्हें याद किया, हाँ, एनबीएफसी बैंक्स का डिफरेंस याद किया, 3-4 चीजें हम्म मैंने और याद करी, और वही चीजें उन्होंने पूछी हम्म ऑन द स्पॉट, उन्होंने वही चीजें पूछी। और आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड आप 4-5 चीजें और थी। तो क्या टेक्निकल क्वेश्चन में क्या पूछा? कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, कोई एसएफएम से रिलेटेड, एससीएम से रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, ऐसा कुछ पूछा? सर नहीं, सब्जेक्ट वाइज उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे, आईआईटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे, वहां पे मैं जो अभी करंटली वर्क कर रही हूँ वो क्या काम कर रही हूँ, मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है उस काम में, कितने लोगों की टीम है, आपकी रिपोर्टिंग डायरेक्टली किसको है, हम्म ये मेरा मतलब तो मेजर जो दो पार्ट किया। एसेंशियल चीज हाँ। दो एसेंशियल चीजें, एक पीएफसी के बारे में इन डेप्थ डिटेल्स पूछी, यस। दूसरा आपका जो सीवी है, आपका जो रेज्यूमे बना हुआ है, उसमें से चीजें निकाल निकाल के पूछी। दे आर निकाल द के। टू कोर थिंग्स। ओके, गॉट इट। एंड व्हाट एल्स डू यू फील कि ये था मेरा टर्निंग पॉइंट, या ये था पॉइंट जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट हुई, एआईआरस को मैंने पीछे छोड़ा और मैंने इस दौड़ में अचीवमेंट करी? आपके क्या सक्सेस पॉइंट्स क्या थे आपके? सर ऑनेस्टी, हाँ। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बिग की। आप सर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप बहुत सारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ना याद करके जाएंगे, सब करते हैं, हाँ। कि हाँ। आपको आपके टीचर्स या आपके गाइडर्स होंगे, वो आपको बोलेंगे कि नहीं आप ये नहीं बोल सकते, ये बहुत बेसिक है, ये आप हम्म। नहीं बोल सकते, आप ठीक है ना, आप समझिए कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो आपके फैमिली हम्म। मेंबर्स नहीं है, आप सोचेंगे। बट मैं भी याद करके गई थी, मैंने भी पूछा था अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से, लेकिन आई डोंट नो व्हाई सर, जो मेरा रियल था, उन्होंने मुझसे पूछा कि अपनी स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस बताइए। मैंने बोला सर आई स्टार्ट विद माय वीकनेस। हाँ। तो जो मैंने उनको वीकनेस बताई, आई डोंट नो व्हाई वो उनको क्लिक करी, कि इसने करेक्ट आंसर दिया और ऑनेस्टी के साथ आंसर दिया। परफेक्ट। यस, ऑनेस्टी इज डेफिनेटली द बेस्ट पॉलिसी। और जो इंटरव्यू होता है ना, उस तक आपकी बात पहुंचती है, आप कनेक्ट कर पाते हो अगर आप ऑनेस्ट होते हो तो। और सर इसीलिए जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ना आपका, आप जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट वे टू किसी भी करेक्ट, जने को अपने प्रति आप कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। करेक्ट, करेक्ट। परफेक्ट प्रभावती। सो इट वाज डेफिनेटली एन इंस्पायरिंग जर्नी, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बहुत सिंपल स्टेप्स तुमने बताए, जो आई एम वेरी श्योर आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। और हाँ, ड्रीम कंपनी है पीएफसी, पिछले 3-4 अटेम्प्ट से एक ड्रीम कंपनी है। हर कोई यस सर। स्टूडेंट जो सीएमए क्वालिफाई करने के बाद कैंपस में अपियर करता है, उसके मुंह पे सिर्फ एक नाम होता है, पीएफसी, पीएफसी, पीएफसी। एंड यू आर द चोजन वन, you are the lucky one this time that PFC has chosen you. So Prabhavati, all the very best for your career. May you have a flourishing career at PFC. और जी हाँ, जब PFC के आप फाइनेंस डायरेक्टर बनोगे, जब कॉस्टिंग डायरेक्टर बनोगे, again I would invite you on this channel, and again we'll have another round of interview with you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बस सेक्रेटरी को बोल देना कि निखिल गुप्ता नाम का अगर कोई पर्सन कॉल करे तो थोड़ा सा उसे टाइम दे दें। सर ये आपके कहने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम है। एब्सोल्युटली, एंड सबके लिए बहुत अच्छा एक कॉन्वर्जेशन था। आपने सबको इंस्पायर किया, आपने सबको एक होप जगाई। पता है, बच्चों में होप ही नहीं है, जो बच्चे सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं उनमें होप ही नहीं है, सर हमारा कैंपस में पता नहीं क्या होगा, होगा भी नहीं होगा, बच्चे ये बोल रहे हैं। लेकिन आपने उन सब बच्चों में होप जगाई। यस सर, बच्चे कैंपस का फॉर्म फिल ही नहीं करते क्योंकि हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगे हुए यस, होते हैं। यस, नंबर यस। ऑफ आपसे जब मैंने आपसे बात करी थी, मेरा जब क्वेश्चन आपसे था कि सर मुझे कैंपस में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, तो मैं तो पीएससी के लिए सोच ही नहीं रही थी, मैं सोच ही नहीं करेक्ट, थी, मुझे लगा कि मेरे पास ऑप्शन आएगा तो प्राइवेट का आएगा, तो मुझे प्राइवेट में करेक्ट, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, दैट्स व्हाई कि मैंने आपको कॉल करके पूछा। बट करेक्ट। आपने जो गाइडेंस दी सर वो बहुत काम करी। थैंक यू सो मच। Welcome. You are always welcome. And yes, may God bless you with an amazing professional career ahead. And may you rock PFC just like you've rocked your intermediate final. And I've seen you since intermediate. You've been a very dedicated and an honest child. Keep your honesty persistent in future as well. So, Prabhati, all the very best for your career. थैंक यू सर, थैंक यू। And many congratulations once again. Enjoy this amazing package and amazing profile with an amazing company.
Power Finance Corporation. All the very best. Thank you, sir. Okay, guys, that was Prabhavati. For all of you, CMA Prabhavati getting the dream job which every CMA aspires for. And yes, in campus placement, PFC is a name that is outshining every other company in recent past. And yes, this time also it has chosen very few. It's known for choosing really few candidates, but giving a very good package. And yes, this is a company where you can see your future ahead, and it's a very, very stable company with amazing profile and package. And may all of you get through PFC in the upcoming attempts. On that positive note, all the very best and happy studying, and appear in campus placement. Share the screen with me when you also qualify for such a company, such an amazing company like PFC. All the very best for your career.